हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 9th ਤੇ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ -1 = 0, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿ 0 ਹੋ ਜੇ, ਫਾਈਂਡ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ x² = 1, x = +-1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਇੱਕ -1 ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਜੇ p1 ਅਤੇ p-1 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ = 0 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ 1 ਅਤੇ -1 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, दोनों अपने की सोल्यूशन है, सोल्यूशन। ठीक है, दोनों की अपनी सोल्यूशन है। बट जो आप सोल्यूशन फाइंड किए कि सोल्यूशन जो फाइंड किए हैं ये किए हैं पॉलीनोमियल px के किए हैं। ठीक है, बट हम अपना टॉपिक ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन हम आप सेम इसी तरह जोड़े कि सोल्यूशन फाइंड करने कि करने डेरीवेटिव के करने हैं। ठीक है, जिमें कि आप एग्जाम्पल देखो, सवाल है डबल डेरीवेटिव। ठीक, +y = 0 ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆਂਸਰ 0 ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੇ 0 ਆ ਜੇ, है ना। तो फिर ध्यान द्वारा सुनो, वो वाई की वैल्यू वो वैल्यू फाइंड करनी है जिन्होंने आप डबल डेरीवेटिव के नाल ऐड करिए आंसर 0 आ जाए। सो वाई आप लैट कर लें C1 cos x +C2 sin x। ठीक है, तो पहला यदा करें सिंगल डेरीवेटिव की आएगा -C1 sin x +C2 cos x। ओके, फिर करो यदा अगेन डेरीवेटिव का अगेन करा डेरीवेटिव बन जू डबल डेरीवेटिव -C1 sin x, ये करा -C2 sin x। ठीक है जी, ये होगा डबल डेरीवेटिव। हुण इस वाई की वैल्यू ये डबल डेरीवेटिव ये पुट कर दो। ठीक है, देखो वाई का डबल डेरीवेटिव आ रहा C1 sin x -C2 सॉरी इसे कॉस होगा -C1 cos x -C2 sin x प्लस y की वैल्यू पुट कर दो C1 cos x C2 sin x। सो ये आ कैंसल ये आ, सो आंसर है 0। ठीक है, इट मीन जो y है आ वाला ये वाला जो y है ना, उस जो आ y है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है। ठीक है, इट मीन y अपना की है y = C1 cos x +C2 sin x इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डेरीवेटिव +y। ठीक है, सो ये सी अपनी एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सुनो भाई डेफिनेशन की है, देखो लिखते हैं वाली कि सोल्यूशन की डेफिनेशन की है, देखो कि ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज any function y = f of x which is put in equation change put in equation then satisfy of it is condition। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि कोई सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन y = f of x पुट इन इक्वेशन। देखो ये अपनी की है इक्वेशन आ वाली। ठीक है जी, ये अपना की y है, कोई y = f of x है। ठीक है, तो जो इस y नू इस कंडीशन के पुट करांगे, ठीक पुट इन इक्वेशन वो की है इस कंडीशन की है सैटिस्फाई करना, मीन लैफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया ना। देन फिर y की बन जू अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जूगा। ओके, सो देखो
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ differential equation which contain as many arbitrary constant as the order of differential equation। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੀ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਆਹ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ C1 C2 ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर आप वाई लैट के आप वाई इज इक्वल टू C1 cos x C2 sin x। ठीक, वाई वो सोल्यूशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाई करता है। जो C1 तो C2 है ये दोनों की है आरबिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। आरबिट्रेरी कॉन्स्टेंट कहते हैं कि आरबिट्रेरी कॉन्स्टेंट वो होंगे कि यदा मतलब C1 C2 की कोई मर्जी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 कुछ भी हो सकती है इन्होंने नंबरों में, A भी B भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब C1 C2 की कोई वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होंगे अपने आरबिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ओके, एक होर एग्जाम्पल देखो, जिमें कि आप इंटैगरल करते आए हैं कि इंटैगरल ऑफ x dx। सो इसका सोल्यूशन की x² + 2 + c। ठीक है, c अपना कोई कांस्टेंट होंगे, जो ये c है ये c अपना की है कोई आरबिट्ररी कांस्टेंट है ये। ठीक है, इस तरह तो जो आप C1 ਤੇ C2 की कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लीए वो की बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, हम देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन की होंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी अपना जरनल सोल्यूशन तो फाइंड किया जाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी जरनल सोल्यूशन तो फाइंड किया जाता है, इट फाइंड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन। ओके, नहीं देखो जिमें कि अपने को एग्जाम्पल सी डबल डेरीवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, आ सी। ठीक है, तो जो आप जनरल सोल्यूशन की गल की थी, वाई की वैल्यू की अपने C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, उदों इस कंडीशन ने इस वाई ने इस कंडीशन को इस इक्वेशन को सैटिस्फाई किया ना, तो C1 C2 की कोई आरबिट्ररी कांस्टेंट है। ये आरबिट्ररी कांस्टेंट मीन कि C1 C2 की कोई मर्जी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो हम देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन आप C1 मानते 4 C2 मानते 5। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू 4 cos x है 5 sin x। ठीक है, हम जो ये वैल्यू है C1 C2 की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू का या फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों की है पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ओके, हम ए वाली इक्वेशन भी सॉरी ए वाला वाई भी इस इक्वेशन सॉल्व इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करूँगा। तो देखो y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा -4 sin x + 5 cos x, फिर अगेन करो डेरिवेटिव -4 cos x - 5 sin x। इन पुट करो ये -4 cos x - 5 sin x + y 4 cos x 5 sin x, इस तरह कैंसिल हो गया, आंसर 0। ठीक है, बट इस वाई ने भी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई किया है, बट ये अपनी आरबिट्ररी कांस्टेंट की फिक्स कांस्टेंट है, नहीं C1 C2 अपने को की है वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, ये होंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो जी आप पहला किए हैं ये कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, मीन पर्टिकुलर सोल्यूशन तो जनरल सोल्यूशन में की है सिर्फ आरबिट्ररी कांस्टेंट का फर्क होंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, सो पहला भी गल की थी कि एक होर जो मेन पॉइंट है कि नंबर ऑफ आरबिट्रेरी कांस्टेंट इन
डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑफ एन आर्डर कि डिफरेंशियल इक्वेशन होवे एन आर्डर की होवे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ n ਹੋਣਗੇ ठीक है। सो जिन्ने आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्नी वो की है आरबीटरी कांस्टेंट है। सो जिमें कि ये सीगा 2 आर्डर की थी तो 2 कांस्टेंट आ गई ठीक है। जो 3 आर्डर की मैं ये कुछ इस तरह कह लो कि ट्रिपल डेरीवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ना, तो फिर अपनी करो ये जी अपनी वाई बन जाती फंक्शन का C1 cos x होंगे प्लस C2 sin x होंगे प्लस C3 होंगे कोई ठीक है। ये वाला जिन्ने आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उन्नी वो की है आरबीटरी कांस्टेंट। तो सेम इसी तरह जो पर्टिकुलर होंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन होने कह लो ऑफ एन आर्डर के होंगे ऑफ एन आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कितने होंगे नंबर ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है। वो होंगे अपने 0 क्योंकि आप जो C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली फिर सोल्यूशन खत्म हो जाएंगे ठीक है। ओके तो ये दोनों बेसिक रिजल्ट याद रखने हैं 1 मार्क्स वास्ते ठीक है। सो ये अपनी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9B की हम आप कुछ बेसिक सम करते हैं। हाँ जी सम देखो ये सम आप 9B एक्सरसाइज लिया है मॉडर्न का मैथ है। सो आप की डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरीवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ठीक है। तो यह अपना वाई का फंक्शन है कि ई वाई इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्योंकि वाई अपना वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स होंगे ठीक है। सो चेक करना है वेरीफाई द फंक्शन इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो फंक्शन है ये वेरीफाई करना कि ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है मतलब इस फंक्शन ये पुट करना है तो चेक करना लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है ठीक है। सो देखो वाई इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स है ओके। सो करो यदा डेरीवेटिव पहले आप सो यदा डेरीवेटिव होगा ई दी पावर माइनस एक्स मीन एक्सपोनेंट का डेरीवेटिव सेम उवें रहिंदा है इनटू ये पावर का डेरीवेटिव -1 प्लस डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 आ जाऊगा। सो माइनस ई दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 ओके। सो डेरीवेटिव के वाई करो ऐड अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि डेरीवेटिव करना वाई नू ऐड ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड अपनी वाली चीज़ है। सो माइनस ई दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई कितना है ई दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ठीक है। सो ये कैंसल बचेगी 1 प्लस एक्स। सो ये चीज़ राइट हैंड साइड बच रही है। सो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अपना की है राइट हैंड साइड। तो ये अपना की है प्रूफ हो गया प्रूफ हो चुका है। हाँ जी नैक्सट हम देखो अपना एक ही वाला। सो ये अपनी की है डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ठीक है। तो अपना की फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला ओके। सो ना इस फंक्शन को इस इक्वेशन सैटिस्फाई करना है। सो ये आप की करेंगे कि राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड लैके आवेंगे ठीक है। तो पहला आप करते हैं वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax का करेंगे डेरीवेटिव 2y इंटू डेरीवेटिव इज इक्वल टू 4a ठीक है। तो डेरीवेटिव की कटांगे जो वैल्यू आप 4a बाय 2y मीन 2a बटा y। सो डेरीवेटिव इज इक्वल टू 2a बाय y ठीक है। तो डेरीवेटिव वैल्यू फाइंड हो चुकी है हुण करना dx बाय dy। सो यदा कर दो रेसिप्रोकल dx बाय dy कितना जूगा y बटा 2 आ जू ठीक है। सो हम देखो इन्हें सॉल्व करना आप मीन जी इक्वेशन अपन दे रखी है वो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे आप राइट हैंड साइड की एक्स इंटू डेरीवेटिव प्लस ए इंटू डी एक्स बाई डी वाई ठीक है। सो एक्स इंटू डेरीवेटिव कितना है 2a बटा वाई प्लस ए इंटू वाई बाय 2a ठीक है। ये वैल्यू इतनी पुट कर दी। सो इन्हें सॉल्व करते देखो 2ax बटा वाई प्लस ए वाई बाय सो ए ना ए कैंसल होगी बचेगी ना वाई बटा 2 ठीक है। तो 2ax सो इन्हें सॉल्व करते हैं देखो थोड़ा इस स्टेप में ध्यान ਨਾਲ देखियो जी कि अपने को वाई स्केयर की वैल्यू कितनी है 4ax है बट इतने कितना 2ax जेकर आप ये 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए 2ax की तो 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दिए ना कंडीशन कोई चेंज तो नहीं ठीक है। प्लस वाई बाय 2 होगी है ना। तो बन जूगा 4ax बटा 2y प्लस वाई बाय 2 ठीक है। तो 4ax की वैल्यू कितनी है वाई स्केयर है वाई स्केयर बटा 2y प्लस वाई बाय 2 स्केयर में वाई कैंसल हो जाएगा ठीक है।
तो y/2 प्लस y/2 कितना ऐड हो गए 2y/2 2 ਨਾਲ 2 कैंसल तो बचा के कितना y तो आप प्रूफ राइट हैंड साइड में जो अपने राइट हैंड साइड सॉल्व करके कितनी बची y तो प्रूफ यही करना है राइट हैंड साइड इक्वल टू y इट मीन जो ये वाला फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो चुका है। हाँ जी एक और सम देखो आ वाला फंक्शन सॉल्व करना है ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं कि पहला करते पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4c(x⁻³ तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगी अपनी x इंटू डेरीवेटिव माइनस 4 इंटू वाई ठीक है। सो x इंटू डेरीवेटिव 4c(x⁻³ माइनस 4y वाई की वैल्यू कितनी है अपने को c(x⁴) फिर सॉल्व करो 4c(x⁴) इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई होगी सो कट ऑफ हो गई आंसर की है 0 रहेगा ओके ये वाला। हाँ जी एक होर सम देखो नाल बिल्कुल आह वाला फंक्शन है तो आह वाली इक्वेशन अपनी डिफरेंशियल तो पहला करो डेरीवेटिव माइनस a sin x प्लस b cos x सो ये सम आप पहला भी सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल के जो आप इस एक्स की इंट्रोडक्शन की थी। फिर करो इसका डेरीवेटिव माइनस a cos x माइनस b sin x सो ये वाई कर दो ऐड माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस a cos x प्लस b sin x सो ये कैंसिल हो गए आंसर इज 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक। हाँ जी नेक्स्ट सम देखो अपना ये वाला ये सम थोड़ा जिहा ना डिफरेंट ही है ठीक है। सो देखो कि आपने की है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये अपना की फंक्शन है ठीक है फंक्शन सो y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस एक्स सो पहला करते हैं इसका डेरीवेटिव सो इसका डेरीवेटिव कितना होगा -1 आ जाऊगा ठीक है बोला इक्वेशन नंबर 1 हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन चक्को ये वाली y माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस y² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू 0 ठीक है। सो इन इधर लाई जाओ इज इक्वल टू आएगा ठीक है जीरो की लोड़ ही नहीं हूँ dy/dx इज इक्वल टू y² माइनस x² बटा y माइनस x आ जाऊगा ठीक है ये वाला ओके। तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये फैक्टर बनाओ y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बटा वाई माइनस एक्स ठीक है। फिर तो ले लो स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड ठीक है एक कैंसिल हो जाएगा तो डेरिवेटिव की बचा अपने को वाई प्लस एक्स तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -1 है इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इन उधर ले जाओ अपना वाई प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक है। क्योंकि अपने को जो सोल्यूशन है ना ये वैल्यू 0 मतलब हाँ ये वाला जो सोल्यूशन है ये आंसर 0 होना चाहिए। हम ध्यान रखो ये वाई की वैल्यू कितनी है एक पुट कर दो वाई की वैल्यू अपनी माइनस इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक इज इक्वल तो आप ओपन करो -1 माइनस एक्स माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे आंसर बचा 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हाँ बोला सही चीज़ प्रूफ करनी से अपना ठीक है। हाँ जी लास्ट सम देखो अपना ये बोला इस एक्स का कि अपने को फंक्शन की 5x की होना बोला तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी यहाँ वाली है वाई का ट्रिपल डेरीवेटिव इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो ये 3 कंडीशन अपन दे रखी ने ये तीनों कंडीशन की है पर्टिकुलर सोल्यूशन ही है ठीक है पर्टिकुलर सोल्यूशन ही है। सो पहले आप आ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करांगे मीन अपने को वाई कितना है x² प्लस 2x प्लस 1 ठीक है। तो पहला करो सिंगल डेरीवेटिव का मीन वाई डैश अपन कह देने 2x प्लस 2 आ जाऊगा फिर करो डबल डेरीवेटिव का जिन पर वाई डबल डैश कह दें और 2 आ जाऊगा फिर करते हैं ट्रिपल डेरीवेटिव इस चीज़ का फिर डेरीवेटिव 2 कोई कॉन्स्टेंट है ये 0 हो जाऊगा सो ये चीज़ प्रूफ करनी से करती हूँ ये आ जाओ y0 का की मतलब y0 का मतलब ये है कि y0 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना अपना प्रूफ ये करना ये मतलब है कि जो y अपना फंक्शन एफ एक्स होंगे ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होंगे ठीक है। हम जिते x है उत्थे कितना भर देना y के आप 0 भर देना इतने सारे दे जिथे x तो 0 भर दो y इज इक्वल टू 0² प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 सो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करती हम सैकेंड कंडीशन की है फिर देखो कि जो y का डेरीवेटिव है वो एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है डेरीवेटिव तो आंसर 2 होना चाहिए ये चीज़ प्रूफ करनी है। फिर देखो लेफ्ट मतलब ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है अभी लेफ्ट हैंड साइड सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम जितने वाई का किया डेरीवेटिव है
ਇੱਥੇ x ਵਿੱਚ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2 × 0 + 2 0 + 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ हैंड साइड। ठीक है, वहाँ केस था लास्ट केस अपना y डबल डेरिवेटिव ऑफ 0, ये भी 2 प्रूफ करना है। उमें लैफ्ट हैंड साइड चको जी y डबल डैश की एक्स है नहीं गा, तो इतने एक्स की वैल्यू पुट कर नहीं सकती क्योंकि ये कॉन्सटेंट है, तो फिर उमें 2 रह जाऊगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये अपना लास्ट सम। सो बाकी जो सम बचे है वो सेम बिल्कुल सेम इसी तरह की है। सो इस अपनी एक्सरसाइज 9B तो टॉपिक से अपना सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की है कंप्लीट है। ओके।